دعا توبہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے معبود، اے وہ جس کی توصیف سے وصف کرنے والوں کی توصیفی الفاظ قاصر ہیں، اے وہ جو امیدواروں کی امیدوں کا مرکز ہے، اے وہ جس کے ہاں نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں ہوتا، اے وہ جو عبادت گزاروں کے خوف کی منزل منتہا ہے، اے وہ جو پرہیزگاروں کے بیم و ہراس کی حد آخر ہے۔ یہ اس شخص کا موقف ہے جو گناہوں کے ہاتھوں میں کھیلتا ہے اور خطاؤں کی باغوں نے جسے کھینچ لیا ہے اور جس پر غالب آ گیا ہے، اس لیے تیرے حکم سے لاپرواہی کرتے ہوئے اس نے ادائے فرض میں کوتاہی کی اور فریب خوردگی کی وجہ سے تیرے منہیات کا مرتکب ہوتا ہے۔ گویا وہ اپنے کو تیرے قبضہ قدرت میں سمجھتا ہی نہیں ہے اور تیرے فضل و احسان کو جو تو نے اس پر کیے ہیں مانتا ہی نہیں ہے، مگر جب اس کی چشم بصیرت واہ ہوئی اور اس کوڑی و بے بسی کے بادل اس کے سامنے سے چھٹے تو اس نے اپنے نفس پر کیے ہوئے ظلم کا جائزہ لیا اور جن جن موارد پر اپنے پروردگار کی مخالفتیں کی تھی ان پر نظر دوڑائی تو اپنے بڑے گناہوں کو واقعاً بڑا اور اپنی عظیم مخالفتوں کو حقیقتاً عظیم پایا، تو وہ اس حالت میں کہ تجھ سے امیدوار بھی ہے اور شرمسار بھی تیری جانب متوجہ ہوا اور تجھ پر اعتماد کرتے ہوئے تیری طرف راغب ہوا اور یقین و اطمینان کے ساتھ اپنی خواہش و آرزو کو لے کر تیرا قصد کیا اور دل میں تیرا خوف لیے ہوئے خلوص کے ساتھ تیری بارگاہ کا ارادہ کیا، اس حالت میں کہ تیرے علاوہ اسے کسی سے غرض نہ تھی اور تیرے سوا اسے کسی کا خوف نہ تھا، چنانچہ وہ عاجزانہ صورت میں تیرے سامنے آ کھڑا ہوا اور فروتنی سے اپنی آنکھیں زمین میں گاڑ لیں اور تذلل و انکسار سے تیری عظمت کے آگے سر جھکا لیا، اے رجز و نیازمندی سے اپنے راز ہائے درد نے پردہ جنہیں تو اس سے بہتر جانتا ہے تیرے آگے کھول دیے اور عاجزی سے اپنے بے گناہ جن کا تو اس سے زیادہ حساب رکھتا ہے ایک ایک کر کے شمار کیے اور ان بڑے گناہوں سے جو تیرے علم میں اس کے لیے مہلک اور بدعمالی ان سے جو تیرے فیصلے کے مطابق اس کے لیے رسوا کن ہے داد و فریاد کرتا ہے، وہ گناہ کے جن کی لذت جاتی رہی ہے اور ان کا وبال ہمیشہ کے لیے باقی رہ گیا ہے۔ اے میرے معبود، اگر تو اس پر عذاب کرے تو وہ تیرے عدل کا منکر نہیں ہوگا، اور اگر اس سے درگزر کرے اور ترس کھائے تو وہ تیرے عفو کو کوئی عجیب اور بڑی بات نہیں سمجھے گا، اس لیے کہ تو وہ پروردگار کریم ہے جس کے نزدیک بڑے سے بڑے گناہ کو بھی بخش دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا تو اے میرے معبود، میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تیرے حکم دعا کی اطاعت کرتے ہوئے اور تیرے وعدے کا ایفا چاہتے ہوئے جو قبولیت دعا کے متعلق تو نے اپنے اس ارشاد میں کیا ہے، مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ خدا وندہ محمد اور ان کی اول پر رحمت نازل فرما اور اپنی مغفرت میرے شامل حال کر، جس طرح میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیری طرف متوجہ ہوا ہوں اور ان مقامات سے جہاں گناہوں سے مغلوب ہونا پڑتا ہے مجھے سہارا دے کر اوپر اٹھا لے، جس طرح میں نے اپنے نفس کو تیرے آگے خاک مذلت پر ڈال دیا ہے اور اپنے دامن رحمت سے میری پردہ پوشی فرما، جس طرح مجھ سے انتقام لینے میں صبر و حلم سے کام لیا ہے۔ اے اللہ، اپنی اطاعت میں میری نیت کو استوار اور اپنی عبادت میں میری بصیرت کو قوی کر اور مجھے ان اعمال کے بجا لانے کی توفیق دے جن کے ذریعے تو میرے گناہوں کے میل کو دھو ڈالے، اور جب مجھے دنیا سے اٹھائے تو اپنے دین اور اپنی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آئین پر اٹھا۔ اے معبود، میں اس مقام پر اپنے چھوٹے بڑے گناہوں
पोशीदा व आशकारा मासियतों और गुज़िश्ता व मौजूदा लग़ज़ों से तौबा करता हूँ। उस शख्स की सी तौबा जो दिल में मासियत का ख्याल भी न लाए और गुनाह की तरफ पलटने का तसव्वुर भी न करे। खुदावंदा तने अपनी मुहकम किताब में फरमाया है कि तू बंदों की तौबा कबूल करता है और गुनाहों को माफ करता है और तौबा करने वालों को दोस्त रखता है। लिहाजा तू मेरी तौबा कबूल फरमा जैसा कि तूने वादा किया है, और मेरे गुनाहों को माफ कर दे जैसा कि तूने जिम्मा लिया है। और हस्बे करारदाद अपनी मोहब्बत को मेरे लिए जरूरी करार दे, और मैं तुझसे ए मेरे परवरदिगार यह इकरार करता हूँ कि तेरी नापसंदीदा बातों की तरफ रुख नहीं करूँगा, और यह कौल बरकरार करता हूँ कि काबिले मजम्मत चीजों की तरफ रुजू न करूँगा, और यह अहद करता हूँ कि तेरी तमाम नाफरमानियों को यकसर छोड़ दूंगा। बारे इलाहा तू मेरे अमल व किरदार से खूब आगाह है। अब जो भी तू जानता है उसे बख्श दे और अपनी कुदरत कामिला से पसंदीदा चीजों की तरफ मुझे मोड़ दे। ए अल्लाह, मेरे ज़िम्मे कितने ऐसे हुकूक हैं जो मुझे याद हैं, और कितने ऐसे मज़लिमे हैं जिन पर निस्यान का पर्दा पड़ा हुआ है, लेकिन वह सब के सब तेरी आंखों के सामने हैं। ऐसी आंखें जो ख्वाब आलूदा नहीं होती, और तेरे इल्म में है ऐसा इल्म जिसमें फरोगज़ाश्त नहीं होती। लिहाजा जिन लोगों का मुझ पर कोई हक है उसका उन्हें एवज देकर इसका बोझ मुझसे बरतरफ और इसका भार हल्का कर दे, और मुझे फिर वैसे गुनाहों के इर्तिकाब से महफूज रख। ए अल्लाह, मैं तौबा पर कायम नहीं रह सकता मगर तेरी ही निगरानी से, और गुनाहों से बाज नहीं आ सकता मगर तेरी ही कुव्वत व तवानाई से। लिहाजा मुझे बेनियाज करने वाली कुव्वत से तक़वियत दे, और गुनाहों से रोकने वाली निगरानी का जिम्मा ले। ए अल्लाह, वे बंदा जो तुझसे तौबा करे और तेरे इल्मे गैब में बेतौबा शिकनी करने वालों और गुनाह व मासियत की तरफ दोबारा पलटने वाला हो, तो मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ कि उस जैसा हूँ। मेरी तौबा को ऐसी तौबा करार दे कि उसके बाद फिर तौबा की ये एहतियाज न रहे जिससे गुज़िश्ता गुनाह महव हो जाए, और जिंदगी के बाकी दिनों में गुनाहों से सलामती का सामान हो। ए अल्लाह, मैं अपनी जहालतों से उजार ख्वाह और अपनी बदामालियों से बख्शिश का तलबगार हूँ। लिहाजा अपने लुत्फ व एहसान से मुझे पनाहगाह रहमत में जगह दे, और अपने तफज्जुल से अपनी आफियत के पर्दे में छुपा ले। ए अल्लाह, मैं दिल में गुजरने वाले ख्यालात और आंख के इशारों और जबान की गुफ्तगुओं, गरज हर उस चीज से जो तेरे इरादे व रिजा के खिलाफ हो और तेरी मोहब्बत के हुदूद से बाहर है, तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ। ऐसी तौबा जिससे मेरा हर अज़ु अपनी जगह पर तेरी अकूबतों से बचा रहे, और उन तकलीफ देह अज़ाबों से जिनसे सरक्श लोग खाइफ रहते हैं महफूज रहे। ऐ माबूद, यह तेरे सामने मेरा आलमे तन्हाई, तेरे खौफ से मेरे दिल की धड़कन, तेरी हैबत से मेरे आज़ा की थरथरी, इन हालतों पर रहम फरमा। परवरदिगारा, मुझे गुनाहों ने तेरी बारगाह में रुसवाई की मंजिल पर ला खड़ा किया है। अब अगर चुप रहूं तो मेरी तरफ से कोई बोलने वाला नहीं है, और कोई वसीला लाऊं तो शिफाअत का सजावार नहीं हूँ। ए अल्लाह, मोहम्मद और उनकी औल पर रहमत नाजिल फरमाया, और अपने करम व बख्शिश को मेरी खताओं का शफीक करार दे, और अने फजल से मेरे गुनाहों को बख्श दे, और जिस सजा का मैं सजावार हूँ वे सजा न दे, और अपना दामने करम मुझ पर फैला दे, और अपने पर्दे आफो व रहमत में मुझे ढांप ले, और मुझसे इस इक़्तिदार शख्स का सा बर्ताव कर जिसके आगे कोई
बंदा जलील गिड़गिड़ाए तो वे उस पर तरस खाए, या इस दौलतमंद का साथ जिससे कोई बंदा मोहताज लिपटे तो वे उसे सहारा देकर उठा ले। बारे इलाहा, मुझे तेरे अजाब से कोई पनाह देने वाला नहीं है। अब तेरी कुव्वत व तवानाई की पनाह दे तो दे, और तेरे यहाँ कोई मेरी सिफारिश करने वाला नहीं। अब तेरा फजल ही सिफारिश करे तो करे, और मेरे गुनाहों ने मुझे हरासा कर दिया है। अब तेरा अफ़व दरगुजर ही मुझे मुतमईन करे तो करे। यह जो कुछ मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं अपनी बदआमालियों से ना वाकिफ और अपनी गुज़िश्ता बद किरदारियों को फरामोश कर चुका हूँ, बल्कि इसलिए कि तेरा आसमान और जो उसमें रहते सहते हैं, और तेरी जमीन और जो उस पर आबाद है, मेरी निदामत को जिसका मैंने तेरे सामने इजहार किया है, और मेरी तौबा को जिसके जरिए तुझसे पनाह मांगी है, सुन ले, ताकि तेरी रहमत की कार फरमाई की वजह से किसी को मेरे हालेजार पर रहम आ जाए, या मेरी परेशान हाली पर उसका दिल पसीजे तो मेरे हक में दुआ करे जिसकी तेरे यहाँ मेरी दुआ से ज्यादा सुनवाई हो, या कोई ऐसी सिफारिश हासिल कर लूं जो तेरे यहाँ मेरी दरख्वास्त से ज्यादा मुअस्सर हो, और इस तरह तेरे गजब से निजात की दस्तावेज और तेरी खुशनुदी का परवाना हासिल कर सकूं। ए अल्लाह, अगर तेरी बारगाह में निदामत व पशेमानी ही तौबा है तो मैं पशेमान हूँ, और अगर तर्के मासियत ही तौबा व अनाबत है तो मैं तौबा करने वालों में अव्वल दर्जा पर हूँ, और अगर तलबे मगफिरत गुनाहों को जायल करने का सबब है तो मगफिरत करने वालों में से एक मैं भी हूँ। खुदाए, जबकि तूने तौबा का हुक्म दिया है और कबूल करने का जिम्मा लिया है और दुआ पर आमादा किया है और कबूलियत का वादा फरमाया है, तो रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद और उनकी औल पर, और मेरी तौबा को कबूल फरमा और मुझे अपनी रहमत से नाउमीदी के साथ न पलटा, क्योंकि तू गुनहगारों की तौबा कबूल करने वाला और रुजू होने वाले खताकारों पर रहम करने वाला है। ए अल्लाह, मोहम्मद और उनकी औल पर रहमत नाजिल फरमा जिस तरह तूने उनके वसीले से हमारी हिदायत फरमाई है। तू मोहम्मद और उनकी औल पर रहमत नाजिल कर जिस तरह उनके जरिए हमें गुमराही के भंवर से निकाला है। तू मोहम्मद और उनकी औल पर रहमत नाजिल कर ऐसी रहमत जो कयामत के रोज और तुझसे इम्तियाज के दिन हमारी सिफारिश करे, इसलिए कि तू हर चीज पर कुदरत रखता है और यह अम्र तेरे लिए सहल व आसान है।